ओके इज मालिक गुड आफ्टरनून मालिक होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूँ कि आप तोड़ करेंगे मालिक तो भारत माता की जय तो तोड़ मालिक basically now this particular sessions which are starting is basically a question bank solving session, a question bank which has been compiled on the basis of module, the new module which has been introduced by ICAI, our beloved mother body, with respect to your May 25 examination onwards. So basically this lectures are taking care of May 25 onwards examination. All questions illustration I am compiled in one of the book that is called volume 2. So basically it's a CA final volume 2 book which is called in nothing but an updated question bank as such. This volume 2 you will be getting in tele on matlab soft copy in target group or revision group. Also you can get on telegram channel. Telegram channel link and target group link is already shared in the description box, so you can refer that. Okay, so that was first thing. This agenda, basically this question banks will be covering with respect to all chapters. All chapters will be covered in a process wise. These lectures are going on live during afternoon session, and later on it is getting uploaded on YouTube lectures, YouTube wale point pe. Okay, so before starting anything, sir, prerequisites, any prerequisites need to be taken care of. First thing, okay, I hope you have given examinations or you may be giving an examination first time, doesn't matter, but at least you should have a background of the chapters. So background of the chapters is a basic necessity as such. Background of chapter, I'm not saying ratify or completely point, because that's where my agenda comes into picture. Whenever I'm discussing with you any question bank as such, so I can discuss with question bank, and along with the question bank I can discuss the theory content. So we'll compile two things together. One, I'll be discussing a question bank, okay, which is on the screen, and along with this, okay, I'll be covering a theoretical relevant theory concept here, Malik. Okay. So November 25, yes, it is relevant. May 25, November 25, no worry, because this same lecture I'll be also putting in our Google Drive also. No, the same lectures, no worry for this point. The only scenario you need to understand, okay, there may be RTP questions more added later on, buddy. So in November 25, okay, once May 25 RTP comes into picture, MTP comes into picture, the new questions will be add on. So that time new questions need to be checked out, rather than you can focus on that individual RTP as such. June 25, May 25 RTP, and you can focus on the other element of RTP. I hope everybody clear, buddy. Okay. So, and along with this, okay, I am sharing with notes. I will be sharing this link on the notes where Google Drive has a Google Drive link where I have updated the notes where every chapter of standards I have written in a chart form. Example, this is basically I've shared, I've written during the classes ka lecture. So this is basically a chapter one. Because whenever we complete the chapter, along with whenever I'm telling you to revise the chapter, this will be the notes which will be shared on the Google Drive link or Telegram channel. Okay, so either of it you can access there. So all complete syllabus I've written here. Okay, how it has been done, how it has been closed. Okay, this is again August 24 batch which has recorded recently has been included here, incorporated here. Okay. Sir, amendment are concerned. Answer is yes. Amendment is concerned. Reason, but amendment is anytime a concern. But amendment is not a major blunder as such. Reason simple, because amendment there is amendment is there in chapter 8 once. Okay, that is majorly amended. Okay, chapter 8 has been majorly amended, and actually it is not an amended. It is added actually. The scope has been increased. तो चैप्टर 8 में क्या क्या चीजें चेंज है क्या नहीं है वो भी विद इन ए वीक मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डलवा दूंगा और वो सारा का सारा चैप्टर 8 का हो जाएगा. Okay, in one of the chapter 450, we always discuss evaluation of misstatement. That has also been incorporated in the syllabus. So that has been covered. So that is a new standard altogether, need to be taken care of. And the third, one more point, that will bank and NBSC. So anyway, bank and NBSC, okay, during this question bank sessions, we'll be covering it out. Okay, no doubt. So technically, bank and NBSC will be covered here. Okay, so during that point, I'll be covering that amendment portion also. Okay, जैसे डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में चेंजेस हुए हैं, एनबीएफसी के ratios में tier वगैरह में changes हुए. You need to remember that rather than, because in bank and NBFC lectures, okay, during our main lectures also I'm discussing, it is more of the reading process rather than classes conceptual clarity and other things are required. Okay, so we'll try to cover with respect to this particular concept. And sir, what will be uploaded on YouTube? Almost the question bank which I am discussing right now. Okay, for majority of chapters will be uploaded on YouTube. बाकी अदर दिस चैप्टर्स आर ऑल्सो अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव जो उन्होंने अपनी बैच खरीदी हुई है, ओके, बैच परचेस की है, मेन बैच और एग्जाम ओरिएंटेड बैच, मतलब फास्ट ट्रैक बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of February. The fast track batch basically starting from 3rd of February for 18, 17 to 20 days odd, morning 7 to 10. In that drive also, it will this all questions will be shared actually. And the TRB book.
Tode revision book. Okay, the revision will be done on YouTube in month of February end. Okay, we'll be covering that complete revision probably in 5 to 6 days approximately. Okay, every day 3 hours, 4 hours revision. Okay, the MCQ will also be covered, buddy. Okay, during the session, not right now, but compiled once compiled is done, I'll be covering that one. Right now, the compiled is done with the theory and integrated case studies. Okay, the other process is compilation of MCQ, and first compilation is getting ready. Compilation past year questions ka point also, and once that is ready, along with that, we'll cover MCQ also. तो एमसीक्यू आई विल बी कवरिंग समथिंग अराउंड मतलब फरवरी टारगेट रखो आप तो ड्यूरिंग दिस पॉइंट अपने सेशन ये है ओके रोज अपना सेशन ये रहेगा एक्सेप्ट ओके संडे आई विल नॉट बी टेकिंग ए सेशन संडे विल नॉट बी हैविंग ए सेशन सैटरडे संडे डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो विल डिस्कस इट आउट और मे वी मे टेक ए लॉन्गर सेशन डिपेंडिंग ऑन क्लासेस एज अदर थिंग्स ओके तो ये लाइव क्या है बट यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे बट यूट्यूब पे अपलोड रिवीजन कंप्लीटली होगा ओके जो तोड़ रिवीजन बुक का है क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन बैंक्स आई विल बी अपलोडिंग ऑन यूट्यूब ओके सर्टेन चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक certain chapters all other chapters will be uploaded in drive and other things okay for the students the paid students अगर concept बात करें but live batch which you are doing right now is accessible to everyone okay because वो अपन zoom link पे ही करने वाले हैं बड़ी okay तो सर मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है चैप्टर 1 का पॉइंट ओके तो आज थोड़ा सा फॉर्मल एक पॉइंट आज फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर का सेकंड कॉन्टेक्स्ट में बता देंगे तो सर ये सब कब तक चलने वाला है फरवरी एंड तक दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी ओके तो आपका फरवरी एंड तक रोज 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो एंड लास्ट 4-5 days of February will be doing a TRB revision book okay it's a complete revision as such from that point so first of all let's focus on this particular point let's start with your चैप्टर 1 तो आज एक फ्लो में समझ में आ जाएगा आपको कैसे जाने वाले हैं और कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट रही आपकी बताइए विल फोकस ऑन दैट ओके अच्छा ड्यूरिंग द क्वेश्चन वी विल आल्सो डिस्कस ड्यूरिंग एक 3-4 दिन जाने दीजिए जैसे जैसे चैप्टर्स जाते रहेंगे फ्लो जाते रहेंगे विल आल्सो डिस्कस कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे आया है वी हैव ए 2 एग्जामिनेशन पैटर्न व्हिच हैज ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस वन इज May 25 वन इज September 25 तो May 25 September 25 का सितंबर नहीं सॉरी November 25 आई एम स्टार्ट ए मिक्सचर ऑफ इंटर एंड फाइनल Okay, May 25, November 25, we have the database. Okay, so we'll also discuss how the question is there, question pattern is there. कौन से चैप्टर में से कितना वेटेज का आया हुआ है टेक्निकली हर चैप्टर का अपना अपना वेटेज दिया हुआ है दो ही पैटर्न है ओके 3rd मई के बाद और पैटर्न बेटर होते जाएगा बट डेफिनेटली इट विल असिस्ट यू इन डिसाइडिंग द थिंग्स बड़ी okay so let's start with discussion of first part okay this is basically with chapter 1 that is called quality control okay chapter 1 quality control is basically here we'll be focusing module questions some module questions will be old module questions which have already discussed those students who had done the main batch and during that batch they have discussed some questions already it may happen okay thoda sa repetitive hoga lekin definitely it will assist you in improvising your answer but there are few major questions have been added by our ICI तो वो क्वेश्चंस को भी आपने कंसीडर करना चाहिए जो अमेंडमेंट हुआ है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड थियोरेटिकल क्वेश्चंस में भयंकर एडिंग हुई है मतलब एडेड हुए हैं हर चैप्टर्स में तो आपको थोड़ा सा वो देखना चाहिए अच्छे से तो उसको अपन कवर करेंगे बड़ी ओके तो दैट्स योर चैप्टर 1 सर अगर मेरे को इसके पहले ये चैप्टर करने के पहले जैसे मैं टारगेट देते जाऊंगा जैसे आज और कल का टारगेट अपना चैप्टर 1 है मतलब 2 लेक्चर्स का टारगेट अपना चैप्टर 1 रहने वाला है ओके कल तक भी चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं ओके तो अगले चैप्टर का टारगेट मैं आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले देते जाऊंगा ओके अलोंग विद दैट आल्सो आई विल बी शेयरिंग इन दैट टारगेट ग्रुप ओके आई विल बी शेयरिंग दैट नोट्स रिटन नोट्स फॉर रिवीजन सर इफ आई वांट टू रिफर सम रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी आप देखोगे नवंबर में आई टुक द रिवीजन सीरीज ओके ऑफ 3 पार्ट्स वो रिवीजन सीरीज आप 3 पार्ट का जो है ना उसमें से मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा यू कैन रिवाइज दैट सीरीज यूज दैट सीरीज एंड बेस्ड ऑन दैट सीरीज द रिवीजन कैन बी डन क्विकली एंड एटलीस्ट यू कैन कम टू द कंक्लूजन पॉइंट तो आप उधर से रिवाइज करिए रिवीजन लेक्चर की लिंक शेयर करने के बाद उसको यूज करिए तो बेस क्या होना चाहिए थोड़ा सा आप रिवाइज करके बैठोगे लेक्चर ओके देखोगे लेक्चर तो आपको और अच्छे से समझेगा नहीं देखोगे तो मेरे समझने के बाद आप थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा आइदर ऑफ इट रिवीजन तो करना ही पड़ेगा आपको नहीं करना पड़ेगा ऐसा होगा ही नहीं पड़ेगा ओके तो सबसे पहले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग की बात करें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग इन चैप्टर 1 अच्छा वैसे चैप्टर 1 में क्वालिटी कंट्रोल में हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स वी आर फोकसिंग एक्चुअली 2 स्टैंडर्ड one is SQC1 and one is SA220
देखो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओके, कुछ नया स्टैंडर्ड आने वाला है, रिप्लेस आने वाला है, प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये लॉजिक मत लगाओ भी हाल फिलहाल, नथिंग एप्लीकेबल टू May 25 नवंबर 25, ओके। तो May 25 नवंबर 25 एवरीबडी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड्स की सीक्वेंस यही है। सर हमने सुना था SQM अगर आने वाला है, स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट, अरे वो सब अगले साल की बात है, ओके, इस साल में मत हेडेक करो। तो आपके लिए बहुत थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, लुकिंग एट द पैटर्न, इफ प्रीवियस टू क्वेश्चन पेपर देखोगे May 25 एंड नवंबर 25, if we focus on May 24 paper and November 24 paper, okay, and we want to conclude something, one conclusion can be very clear that your question 1A is always on what? Chapter 1, okay, दोनों टाइम chapter 1 quality control पे आया था बड़ी, okay, both the time, यानी chapter 1, and it was approximately for 5 marks, यानी technically this chapter is okay, out of 20 chapter this chapter has came for 5 marks, okay, in both the attempt, and technically this will be very important in the next attempt also. Reason simple, because SQC1 is applicable not only for auditing, it is applicable for firm, CA firm, but definitely the understanding and applicability of that questions should be very much clear. So make sure this chapter stands very important from your both the examination pattern, मतलब पैटर्न को देखे तो माँ कसम तोड़ पेपर है भाई, तोड़ चैप्टर है, अपने लिए ध्यान रखने लायक है बड़ी, ओके। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है बड़ी, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन, अगर ये इसमें याद है तो मैं ब्रीफ आपको याद दिला दूं, ब्रीफ याद दिला रहा हूँ, ब्रीफ याद दिला रहा हूँ, देखिए, ओके, SQC1 and SA 220 is a major point, peer review, audit review, NEFRA was a basic structure if you remember by chance, okay। In SQC1 and SA 220 we have total LEHM का concept, if you remember, LEHM is leadership responsibility, ethical requirement, acceptance continuous, human resource, engagement performance monitoring. Leadership responsibility, we understood what are the SQC1 की leadership responsibility, that CA firm should have, policy process should be there, okay, internal culture and other elements should be there. I hope ये point clear buddy, okay। so these are something which need to be taken care, along with the quality business strategy कैसे क्या रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, यही क्वेश्चन आंसर में जैसे आते जाएगा उसके हिसाब से अपन इसको क्लोज करते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अभी हाल फिलहाल आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी को बेस करिए, सॉफ्ट कॉपी को जो स्क्रीन पे चल रहा है उसको जाइए, आई एम वेरी गोइंग वेरी स्लोली, नॉट वेरी क्विकली, तो आराम से जाइए, यू क्लोज ऑन द स्क्रीन एंड लेटर ऑन जस्ट टेक ए प्रिंट आउट मालिक, ओके। First of all, ABC Associates, a chartered accountant, has a policy to accept the clients wherein the risk evaluation is conducted with respect to the company and the promoter. Okay, so ABC is always having a policy to accept the client where the risk evaluation is conducted. So if risk evaluation is conducted, they are covering over two aspects. One is company कैसी है और one promoter कैसा है. तो उनको कितने एलिमेंट दिखते हैं, दो एलिमेंट। XYZ Limited approach, ABC Associates, promoter of XYZ is a very close associate. A promoter of XYZ is a close associate and family friend of Mr. A, managing partner of ABC Associates. यानी यहाँ पर जो XYZ कंपनी है, जो क्लाइंट है ओके, उसका जो मैनेजिंग पर्सन है, मैनेजिंग प्रमोटर है, प्रमोटर वो अपने मैनेजिंग पार्टनर, जो अपना पार्टनर है ओके, वो मैनेजिंग पार्टनर है उसका बहुत क्लोज है। आई होप एवरीबडी इज अवेयर दैट मैनेजिंग पार्टनर इज अ पर्सन हु विल बी एंश्योरिंग कंप्लायंस विद SQC1 इन द फर्म, ओके, सबको ये याद आना चाहिए। XYZ Limited is in news in the previous year for certain inquiries from the regulatory authorities in relation to certain matters. ओके, न्यूज में था रेगुलेटरी अथॉरिटीज की कुछ इंक्वायरीज चल रही है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, ओके, कुछ तो गड़बड़ है दया। The existing auditor of XYZ Limited has resigned and has created a casual vacancy. Okay, casual vacancy है। XYZ is ready to offer 25% more than existing fees and has approached ABC Associate for appointment as an auditor. Mr. A, okay, strongly recommend. Mr. A strongly recommend. I hope everybody is aware. Mr. A कौन था? Mr. A उनका दोस्त था। Strongly recommend firm to accept the audit. यानी वो recommend कर रहे हैं कि audit accept करना चाहिए। What is your understanding of functioning of the tone of the top of the firm? ABC Associate Chartered Accountant, यानी कि functioning कैसी है? And what are the considerations one should exercise to uphold the quality of firm? So there are two questions as such. But before going on this, okay, एक चीज मैं आपको समझा दूं भाई साहब, अगर आप इस चीज के लिए अभी तक रेडी नहीं हो रहे हो, आप गड़बड़ कर रहे हो। ओके, सीए फाइनल का पेपर जिसने ऑलरेडी अटेम्प्ट दे दिया, आप उससे पूछ सकते हो, इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर, इट इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर, इट इज a case study and it is not having exactly direct answers. The answers need to be drafted by you buddy. आंसर आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि भाई सर आपने जो लिख के दिया हुआ था आंसर ये हमने लिख दिया, ये आंसर जो लिखा हुआ है वही हमने लिख दिया आंसर, अरे भाई ऐसा नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये चीज प्लीज अंडरस्टैंड करिए, भले ही थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन इसको अडेप्ट करिए, मेथड को अडेप्ट करिए। जितना जल्दी मेथड को अडेप्ट करोगे 40 नहीं 60 लाने का और लॉजिक आराम से बैठ जाएगा।
द मेथड इज वेरी सिंपल, अप्लाई योर कॉन्सेप्ट्स, अप्लाई अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाई द थिंग। जैसे यश का भी आंसर आया सर फैमिली थ्रेट्स आ रहा है क्योंकि थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है, तो अप्लाई सेफगार्ड। यानी टेक्निकली अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में आपको मल्टीपल थिंग्स मिल रही है। मेरा पहला पॉइंट आई होप सबको समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट फैमिली थ्रेट्स है। फैमिली थ्रेट्स क्यों है बड़ी, रीजन सिंपल है, वो फ्रेंड है। तो क्या फ्रेंड होने की वजह से अपन ने ये एंगेजमेंट लेना ही नहीं चाहिए ऐसा मैंने बोला नहीं। याद रखना फैमिली थ्रेट्स, अच्छा फैमिली थ्रेट्स को क्या करना चाहिए, इंटर का आंसर है ये, फाइनल में नहीं मिलेगा लेकिन आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे। अब इमेजिन करो अगर आपको आपके फ्रेंड का, देखो आपके रिलेटिव का एंगेजमेंट आप ले सकते हो, आपके रिलेटिव का एंगेजमेंट ले सकते हो मालिक, एवरीबडी कैन यू टेक द रिलेटिव एंगेजमेंट, आंसर इज नो। ओके तो फर्स्ट पॉइंट आंसर नो है, लेकिन फ्रेंड का ले सकते हो, आंसर इज यस। बट फ्रेंड के इसमें फैमिली थ्रेड्स को आप क्या करोगे, सेफगार्ड डालोगे। यानी व्हाट इज एन एग्जांपल, यू विल नॉट बी डूइंग, सम अदर पार्टनर कैन डू दैट ऑडिट। दैट इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट कर। तो एक एक पॉइंट को एक एक टाइम पे लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, हु इज प्रमोटर ऑफ XYZ, प्रमोटर ऑफ XYZ okay is a friend of managing partner, so therefore technically this managing partner should not be assigned to this audit, that for sure। तो पहला पॉइंट आपको क्या समझ में आया, there is a फैमिली थ्रेट के लिए सेफगार्ड डाल सकते हैं। सेफगार्ड का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कंपलसरी है, बिकॉज इंडिपेंडेंस इज वेरी कंपलसरी। इंडिपेंडेंस अगर आप देखोगे इथिकल रिक्वायरमेंट along with इंडिपेंडेंस, इट्स utmost important, right, utmost important any engagement, okay, इसमें कॉम्प्रोमाइज होनी नहीं चाहिए। And second, okay, one more answer they are saying, okay, there are certain inquiries against regulatory authority के तरफ से। क्या इस कंपनी के अगेंस्ट कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी की इंक्वायरी चल रही है, आंसर इज यस सर। वो इंक्वायरीज क्या चल रही है, इंक्वायरीज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू, यार यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी इंक्वायरी कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो नॉन कंप्लायंस हो रहा होगा। Certain things may be happening and they are in news in previous year, matlab something which is not actually good for the client point of view, it is happening। So second point, yaar, integrity issue of client is also there, integrity issue, because there is an regulatory authority se inquiries hai। The existing auditor has also resigned and created casual vacancy। अरे माँ कसम, मतलब जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वो रिजाइन कर चुका है। अच्छा, आई होप सबको याद होगा, रेजिग्नेशन ऐसे मन किया कर नहीं सकते, देयर मे बी सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। इफ लिस्टेड कंपनी है तो रेजिग्नेशन करने के लिए सेबी की क्राइटेरिया है। बाकी अदर देन दैट आल्सो जब रिजाइन करते हो तो वी जस्ट डू अपडेट द रेजिग्नेशन लेटर में क्या कारण था, वी आल्सो अपडेट द कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। द एग्जिस्टिंग ऑडिटर हैज रिजाइन्ड एंड क्रिएटेड कैजुअल वैकेंसी। नाउ दिस कंपनी इज ऑफरिंग मी 25%, माँ कसम 25% एक्स्ट्रा फीस भाई वो चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे। तो टेक्निकली देखा जाए तो मोटा मोटी विद दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द क्वेश्चन, okay, make sure you are spending time on understanding this, huh buddy, again I'm telling you, the logic which institute required is not the same what would happen in 1 year 2 years back of audit paper। the logic has completely different। ओके तो अब मेरे को बताओ, ये 25% एक्स्ट्रा कर रहे हैं, अब टेक्निकली ये भी तो गलत है ना, बिकॉज परफेक्ट श्रीनिधि अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर दिस वन, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट क्वालिटी कंट्रोल शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ द रेम्यूनरेशन। Okay, consideration of fees should not override the quality of control। I hope you remember this one। Okay, we have discussed in leadership quality, the leadership person should ensure he should have a policy procedures, okay, that need to be taken care of। now here एक छोटा सा मैं concept आपको highlight करा दूं। okay, if you remember, the quality should be more than business or business should be more than quality should be more than business। इसीलिए first of all business strategy should not override quality control। यानी basically commercial consideration should not override quality control, it should be of paramount importance, and most important, it is not negotiable। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके साथ में इंश्योर क्या करना होगा, इसीलिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी देयर। व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी देयर, कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट एक्सीड क्वालिटी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट शुड टेकन केयर, ओके, इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वालिटी कंप्लायंस। यानी व्हेन वी आर प्रमोटिंग, व्हेन वी आर गिविंग कंपनसेशन, व्हाटएवर, इट शुड बी बेस्ड ऑन क्वालिटी कंप्लायंस, एंड वी शुड डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेस, ओके, फॉर डेवलपमेंट, documentation, support of policy procedures। this should be there always। this is firm's requirement। okay, this is firm's requirement, this is SQC1। even if you remember integrity of client, one question is there, okay, if you remember in our syllabus, that integrity of client, whenever there is an issue with integrity of client, these are some of the factors which is on the screen। there can be a business reputation issue, there can be a nature of operation we need to check, attitude of the owner, fees is less, limitation of scope, whether this is unreasonable, okay, money laundering or criminal activities like compliance issues are there, change in auditor, why there is a change in auditor, if change in auditor because of regulation, matlab example 5 years has been completed and you are changing the auditor, fair enough, but there is no 5 years completed, in between there is a change in auditor, can there be a reason?
ओके भाई साहब, आप देखो कितने सारे फैक्टर्स एक क्वेश्चन में आ गए, एंड दीज ऑल फैक्टर्स अगेन एकदम आराम से, मतलब ये मैं शायद एक दो बार मैं आपको रिपीट करते रहूंगा। आप देखो, हाँ, ये सारा डेटा उठाना पड़ेगा और ये डेटा सारा का सारा लिखना होगा, ऐसा नहीं है। फिर क्वेश्चन पे जाओ, आपको ये सब डेटा उठाना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन पे जाओ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखो। क्वेश्चन इज क्लियरली आस्किंग व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टोन ऑफ टॉप फर्म ऑफ एबीसी, यानी ये जो मिस्टर ए है एबीसी का, एबीसी एंड एसोसिएट्स का, उसका फंक्शनिंग कैसा है, उसका फंक्शनिंग अच्छा है या खराब है। Okay, is he in favor of quality or he is against the quality? He's more in commercial consideration. He's more in friendship. He's more in friendship, buddy. He's more in commercial consideration. He is focusing on getting more money. Okay, against the quality है। तो पहले लाइन का आंसर एकदम क्लियर है, against the quality है। Second, what are the consideration one should exercise to uphold quality of firm? Okay, यानी इस केस को देख के बोलना है आपको, क्वालिटी को अपहोल्ड करना है तो बहुत सारे कंसिडरेशन होंगे। अरे इक्यूसीआर करो, वगैरह वगैरह करो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के रिलेटेड में कंसिडरेशन आपको बताना है कि भाई क्वालिटी ऑफ फर्म कैसे अपलोड होगा। ओके, अपहोल्ड होगा, हाउ इट विल बी अपहोल्ड क्वालिटी ऑफ द फर्म। द लॉजिक इज सिंपल। ओके, सिंपल सा पॉइंट है जो अपन ने पॉइंट अभी देखा, क्वालिटी कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट एक्सीड क्वालिटी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट शुड बी बेस्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल का कंप्लायंस, and there should be sufficient resources who will be ensuring that quality control for policies and procedures will be designed, developed, communicated properly. तो टेक्निकली ये दो कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा, दो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये आंसर लिखना होगा। अब सर आंसर कैसे लिखे, आंसर कैसे लिखने का ये कॉन्टेक्स्ट एकदम सिंपल सा पॉइंट है। ओके, नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द आंसर, यहां पर आपको है ना फैक्ट एंड प्रोविजन को मिक्स करना पड़ेगा बड़ी। ओके, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल इंटरमीडिएट वे हैज बीन आउटडेटेड। अगर आपका इंटर का एक कोई अप्रोच होगा तो वो आउटडेटेड है बड़ी। सर व्हाट इज एन अप्रोच ऑफ इंटर, कभी कभी मालूम है आपने लॉ में लिखा होगा, ऑडिट में लिखा होगा, पहले फैक्ट प्रोविजन लिखेंगे, फिर फैक्ट लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। अरे मालिक इससे बाहर होते जाइए। ओके, मतलब गोइंग गोइंग आउट ऑफ दिस। ओके, इससे बाहर निकलिए। ओके, वो अप्रोच है ही नहीं। नाउ यू कांट हैव वन फॉर्मेट, यू नीड टू क्रिएट योर ओन फॉर्मेट बेस्ड ऑन केस स्टडी। तो मेन पॉइंट, टू थिंग्स रिमेंबर इज आउट। ओके, वन इज फैक्ट एंड वन इज इंटीग्रेट द प्रोविजन। ये दोनों का इंटीग्रेशन, ये दोनों का संगम तोड़ होना चाहिए बड़े। ये दोनों का संगम तोड़ कर दिया तो भाई साहब ये सही होगा। अब एक बार एक दो चार क्वेश्चन जाने दो, एक दो तीन लेक्चर जाने दो, जैसे जैसे आगे के चैप्टर आएंगे आप देखो, आप अपने आप समझ में आते जाएगा, लेकिन आप फ्लो में जाते जाइए। बस फिर अपने को क्या करना है मालूम है क्या, एक एक मतलब चार पांच चैप्टर हो गए, 6 चैप्टर हो गए, उसके बाद खाली स्पीड बढ़ानी है। आपको स्पीड बढ़ानी होगी ये सब चीजों की। ये स्पीड बढ़ा दी, फिर अपन वो 3 घंटे में खत्म कर सकते हैं, लेकिन पहले डायरेक्शन तो सही तरह से आइए। तो सर क्या बोला हुआ है, एक बार क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। सबसे पहले देखो, द गिवन सिचुएशन इंडिकेट प्रपोज क्लाइंट इज अ न्यू वन वेयर प्रमोटर इज क्लोज एसोसिएट एंड फैमिली फ्रेंड ऑफ मैनेजिंग पार्टनर। ठीक है, ये तो अपने डिस्कशन किया। However, previous auditor of proposal has resigned and company is offering a hike, okay, in comparison to previous auditor. Besides, there are also regulatory inquiries. In spite of all this, managing partner is recommended. तो मेरे को बताओ ये क्या आंसर है, ये क्या लिखा उन्होंने, पहला पैराग्राफ क्या लिखा है, अपन इसमें से निकालेंगे ना आंसर। पहला पैराग्राफ क्या लिखा है बड़ी, पहला पैराग्राफ हैज दे रिटन प्रोविजन और फैक्ट, इट इज फैक्ट, यानी फैक्ट मतलब क्या सर, क्वेश्चन उन्होंने वापस लिख दिया। तो स्टार्ट इन्होंने किया फैक्ट से, यानी टेक्निकली ओके एक फैक्ट को ही रिप्रेजेंट दिया। बट मेक श्योर, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट डिपेंड्स ऑन मार्क। ओके, मैं वापस बोल रहा हूँ, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, गड़बड़ होगी। तो अपने को टारगेट दो चीज करनी है, अपने को आंसर भी अच्छा लिखना है, पेपर भी कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है 90 80 70 80 मार्क का लिख के आएंगे। अरे अल्टीमेटली व्हेन यू राइट फॉर द लेस मार्क, ऑटोमेटिकली यू आर मेकिंग श्योर दैट यू विल बी गेटिंग ए लेस मार्क ओनली। तो मेक श्योर पहला पॉइंट याद रखना। तो ये है ना, ये जो है ना, ये कस्टमाइज करना पड़ेगा मार्क्स के ऊपर। अगर ये 4 मार्क है, 5 मार्क है, ओके देन दिस फेयर इनफ। लेकिन अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन में भी कैटेगरीज में आ सकता है, 2 मार्क में यू कांट राइट डायरेक्टली दिस वन, डायरेक्टली प्रोविजन एंड कंक्लूजन, लेकिन ये फैक्ट आ गया। अब ये अगला पड़ा हुआ आता है, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। आई होप कंक्लूजन का पॉइंट, इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली रिगार्डिंग फंक्शनिंग। ओके, फंक्शनिंग एट द टॉप ऑफ द फर्म। अगर आप ये लाइन पढ़ोगे जो येलो की मैंने की हुई है, ये है कंक्लूजन। फंक्शनिंग कैसी है, अब फंक्शनिंग कैसी है इसको कैसे दिया हुआ है। अब इसके अंदर आपको लिखा हुआ है, ओके, प्रोविजन। SQC1 requires the firm to establish a system of quality control designed to provide with reasonable assurance that firm and personnel comply with professional standards and legal and regulatory requirements. आपको रीजनेबल अश्योरेंस आना चाहिए। सर अब ये आंसर कहां से लावे, ये तो कहीं पर दिखा नहीं। अरे ये जनरलाइज है, अब ये कहां से लावे, तो फर्म ने कंप्लाई करना चाहिए। सर कहां से, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड SQC1 ना। SQC1 का कोई कंटेक्स्ट है सर, कहां से आएगा, ये पहला वाला आंसर, लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी।
ओके, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखने का कल्चर है, लीडरशिप क्या करना चाहिए भाई, फर्म के इसमें एस्टेब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ के पास होनी चाहिए, इन्होंने इंश्योर करना चाहिए कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही चीज अगर आप थोड़ा सा नोट करोगे, इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ोगे ना, इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी यही कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है आपको, इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंगेजमेंट पार्टनर, एक बार इंगेजमेंट पार्टनर मतलब SA 220 that workforce should comply with professional standards and regulatory requirement। टेक्निकली वही तो है हर काम, तो ये वर्क कंप्लाई होना चाहिए, तो वर्क कब कंप्लाई करेगा, जो फर्म है। अच्छा, एक चीज सबको याद है क्या, SQC1 इज डिपेंडेंट ऑन SA 220 और SA 220 इज डिपेंडेंट ऑन SQC1 बड़ी। SQC1 is dependent on SA 220 और SA 220 is dependent on SQC1, SA 220 is dependent on SQC1। ओके, याद रखना, SQC1 SA 220 का प्रीमाइज SQC1 है, अगर SQC1 नॉन कंप्लाइड है तो SQC1 इज नॉन कंप्लाइड, तो SQC1 नॉन कंप्लाइड है, SA 220 ऑटोमेटिकली नॉन कंप्लाइड है, SA 220 ऑटोमेटिकली नॉन कंप्लाइड है। ओके, आई होप ये याद है बड़ी। ओके, तो ये देखो ना, मतलब मसाला कॉम्बिनेशन किया अपन ने, कंटेंट। It is further required that firm's business strategy is subject to overriding requirement of firm achieving quality engagement. However, in given situation, commercial consideration seems to be overriding factor. Okay, यानी टेक्निकली, ओके भाई साहब, ये ओवरराइडिंग फैक्टर, तो इन्होंने पहला पॉइंट अपन ने लिख लिया जो अपन ने डिस्कस किया। तो yeah. Second point, the managing partner of the firm is close associate and family friend of promoter. The matter would have been brought to the knowledge of the firm in accordance with SQC1 as it involves issues of independence of managing partner. तो with respect to proposed audit engagement, further the matters of inquiry वापस वही रेज किया, तो SQC1 further requires the firm to consider the acceptance of engagement that client does not lack integrity, जो मैंने आपको फैक्टर बोला। All these factors have been taken into consideration before accepting the engagement। तो मेरे को बताओ, आपको नहीं लगता है लेहम, जो एकदम आसान सा आंसर लगता है अपने को, एकदम आसान सा आंसर लगता है, डोंट यू थिंक इट्स अ एलिफेंट, ऑल फैक्टर नीड टू बी कंसीडर्ड, एवरी क्वेश्चन कैन कम इन दैट वे, जनरलाइज क्वेश्चन। इधर तो ठीक है, इधर तो ये है। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, इसको कैसे ओवरकम करवाओगे, अगर बाई चांस ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेते, ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेते और ये दोस्त है उसका, इसको ओवरकम कैसे करवाओगे, अगर ये दोस्त है उसका तो इसको ओवरकम कैसे करवाओगे, इसको ओवरकम कैसे करवाओगे। ओके, याद रखने का, ये एंगेजमेंट किसी और से करवाने का। हाँ, रिलेटिव हुआ तो ये याद रखना, एंगेजमेंट में रोक कर नहीं, इसको एंगेजमेंट में रोककर, परफेक्ट, इसको एंगेजमेंट में रोकना चाहिए, इसको एंगेजमेंट नहीं करवाना चाहिए। आई होप ये समझ में आया, तो इसको एंगेजमेंट में नहीं करना चाहिए, लेकिन टेक्निकली एकदम अच्छे से रखना पड़ी। ओके, तो इसमें क्वेश्चन है ही नहीं, तो इसलिए अपन एम्फेसाइज, फेमिलिटी के ऊपर बात ही नहीं की है, इसीलिए वी आर नॉट एम्फेसाइजिंग। अगर क्वेश्चन आता ना फेमिलिटी के ऊपर, तो अपने को उस पर भी ध्यान देना पड़ता। ओके, overall such situation reflects lack of proper establishment of quality control framework at top of the firm। following consideration, ये डायरेक्ट आंसर आपका है, पानी पानी। following consideration should be taken into consideration with uphold, ये वाला डायरेक्ट आपका आंसर है, ये आपका बुक का आंसर है ये वाला। first, the firm assigns management responsibilities so that commercial consideration do not override quality। firm's policy procedure in relation to personnel are designed to demonstrate its overriding commitment to quality। sufficient resources for development and documentation of quality policies and procedures। एंड सारी चीजें आपने देखनी चाहिए। ओके, दैट इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, प्रमोटर्स क्या है क्या नहीं है, एटीट्यूड, ओके, वो आपको डिफाइन किया हुआ है। तो ये आंसर, ओके, अगर आप देखोगे फ्लो में कितना करेक्ट है, मेरे को बताओ। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ओके, आई होप मतलब अपन ऑल टुगेदर अभी 15-20 मिनट में अपने को एक क्वेश्चन समझा हुआ। मेरे को बताओ, क्या इसमें एवरी स्टूडेंट विल बी हैविंग सेम आंसर, आंसर पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, एवरी स्टूडेंट विल नॉट हैव ए सेम आंसर। तो इसमें आपको ये समझना होगा, द एग्जामिनर विल इवैल्यूएट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट क्वेश्चन, बिकॉज सजेस्टेड आंसर, बहुत बार अपन लोग क्या डिबेट करते हैं, एवरीबडी डिबेट सजेस्टेड आंसर को मैच होना चाहिए, याद है, मालूम है ना, ये एवरीबडी डिबेट ऑन दिस ना। ओके, मेरे को बताओ कैसे मैच होगा। ओके, हाउ इज दिस क्वेश्चन वेयर दिस, तो इसीलिए एक बेस याद रखिए, सजेस्टेड आंसर इज ओनली ए बेसिस, यू अप्लाई योर लॉजिक्स। ओके, इसीलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैटर्स अ लॉट, कॉन्सेप्चुअल समझो, क्वेश्चंस को करो, प्रैक्टिस से आपका मोर इम्प्रोवाइज होगा। ये प्रशांत सर की या किसी और की, ये अपनी बॉटल की, इधर प्रेम भाई तो मेरे को कुछ भी पानी पिला दे रहे, माँ कसम, तोड़। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो मेरे को बताओ, ओके, स्टार्टिंग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अपने चालू किया है, मेरे को बताओ माइंडसेट क्या करने का, क्या रटना है, आंसर इज नो।
हाँ, पॉइंटर रटने चाहिए रिवीजन लेक्चर से, वो याद आने के लिए, फ्लो याद आने के लिए, लेकिन वो पॉइंटर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग। सेकंड, do you think there is only a single format for this answer? Answer is no, there cannot be a single format. If you are focusing on single format, you are going in wrong direction buddy. Okay, अगर आपको कोई समझाता भी है कि बस ये फॉर्मेट लेके बैठ जा, ओके, तब गलत जा रहे हो। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, okay, apply all areas in question, but mainly write the answer only of what is asked. Apply all areas, okay, but write only what is asked, don't elaborate on the other areas. जैसे एग्जांपल, क्या फैमिली फ्रेंड्स के बारे में लिखा था? आंसर इज यस, लेकिन उन्होंने लिखा है इसको ओवरकम कैसे करना है, कुछ करना है नहीं, लेकिन बाकी थ्रेड्स को इन्होंने क्या बोला, कमर्शियल कंसिडरेशन को ओवरकम कैसे करेंगे ये देखेंगे, वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से आप फोकस वैसे ही रखना। ओके, तो आई होप ये पॉइंट स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन झेपा है। सेकंड, MNP and Company, a firm of auditor, is appointed by bank to conduct stock audit of borrower. It deputes one of the paid chartered accountant employees, Sudhanshu, to conduct above stock audit. Okay, यानी उनके पास एक employee है Sudhanshu. He leverages it an opportunity to prevail upon the client to get an accounts audited from their firm. यानी एक employee लीवरेज देख रहा है, यानी वो बोलता है ना कि भाई यार एक काम करेंगे यार, ये इनका बुक्स भी अपन ही चेक कर लेंगे, अभी स्टॉक ऑडिट करने जा रहे हैं, खाली स्टॉक चेक करने जा रहा हूँ, अभी बुक्स भी ऑडिट करवा देंगे। He also assure the client of a clean stock audit report without adverse comment as quid pro quo. I hope you remember quid pro quo. Okay, it's give and take relationship. Is this approach of Sudhanshu proper? Answer is, क्या है इसका आंसर? पहला आंसर ही क्लियर है, सुधांशु का अप्रोच क्या है, प्रॉपर है क्या? आंसर इज नो। How does it reflect the quality control in the system of the firm? Clear cut है, कंट्रोल में सिस्टम ही वीक है। अगर पॉलिसी प्रोसेस होती, सुधांशु एन एम्प्लॉय वुड नॉट हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन विद द पर्टिकुलर क्लाइंट। Okay, because there may not be policy procedure in this organization, policy procedure will be missing in the firm. Okay, my question, do you think SQC1 require policy procedures to be there in firm? Answer is yes. तो पहला आंसर देखो इधर क्या लिखने का, सुधांशु का अप्रोच प्रॉपर नहीं है। Such practices bluntly violate code of ethics and its spirits. Okay, याद रखना, code of ethics मतलब खत्म है कहानी। Okay, but it reflects poorly upon quality control system in the firm envisaged in SQC1, which requires quality control policies and procedures should be documented and communicated to firm personnel. किया ही नहीं है communicate, perfect यश। Objective quality control is not clearly communicated to employee, आया ही नहीं। It shows that firm personnel are not properly sensitized regarding the requirement of SQC. Okay, तो I hope ये क्लियर है बड़ी। ओके, अब मेरा क्वेश्चन का दो क्वेश्चन, मेरे दो क्वेश्चन आप देखो बता पा रहे हो कि नहीं। ओके, दो क्वेश्चन को बताइए आप मेरे को। ये किधर गया रे, मां कसम। दो क्वेश्चन है इस केस में, प्लीज बताइए मेरे को। बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ दिस क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स 3 मार्क, इट्स ओके, दिस मच आंसर इज ओके, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। ओके, व्हाट शुड वी राइट फॉर मोर? सपोज दिस इज 4 and 5 मार्क्स क्वेश्चन, सपोज 4 and 5 मार्क्स क्वेश्चन आया तो क्या करना चाहिए? ओके, 4 and 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी राइट? दिस इज, सपोज दिस इज द कंटेंट ऑफ SQC1, तो टेक्निकली मतलब क्या क्या लिखना चाहिए? अगर आप देखोगे, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इथिकल रिक्वायरमेंट। ओके, अच्छा, इट इज नथिंग टू डू विद, आई होप एवरीबडी वुड एग्री, मॉनिटरिंग का कोई लेना देना नहीं है। ओके, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस नहीं, ह्यूमन रिसोर्स का पॉइंट नहीं, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस के बारे में भी कोई नहीं है बड़ी। आई होप एवरीबडी वुड एग्री विद दिस। Okay, even ethical requirement में there is more of EQCR and ethical requirement. I hope यार everybody clear, independence, more of independence. तो policy procedure for independence is there. तो ठीक है। ओके, तो मेनली आपका पहला पॉइंट है। तो अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता है सर, यस, ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरे लिखने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे यहाँ पर? ओके, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स विल बी क्लियर ऑफ SQC1। जहां पर मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स मतलब मेरी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाला सिनेरियो एकदम बेसिक पॉइंट पे। ओके, यानी इंटरनल कल्चर होना चाहिए विच इज रिकॉग्नाइज दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या आंसर को मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? आई होप एवरीबडी इज गेटिंग दिस पॉइंट, दैट इफ द क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स इट्स ओके, फेयर इनफ, वी हैव रिटन द आंसर, बट इफ इट इज फॉर 4 and 5 मार्क्स, ओके, व्हाट यू विल डू बडी? So either internal culture should be there, ultimate responsibility should be CEO and managing partner. CEO should be experienced and able, and most important, they should encourage the quality control. But how they will encourage the quality control? By having policy and procedure. अच्छा, are you required to write this about commercial consideration? Nothing, nothing. This is nothing to be done. ये इसका लेना देना ही नहीं है। ओके, यहाँ पे आपका पहले पार्ट पे आंसर एंड होना चाहिए, ये आंसर एंड वॉट एवर द थियोरिटिकल आंसर आपने जो लिखा होगा ना, ये वाला आंसर, ये वाला अप्रोच कि भाई सुधांशु का अप्रोच नहीं है, और इसको और बढ़ाना रहा तो क्या कर सकते हो मेरे को बताओ? और बढ़ाना, अभी एक हो गया, एक ही आंसर 4 लाइन का आंसर हो गया बुक का।
पर थोड़ा सा और एलोबरेट करना पड़ेगा। फैक्ट, इन्होंने फैक्ट नहीं यूज किया है, समझ रहे हो? तो फैक्ट, फैक्ट तो मेरे को बताओ, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो क्या अवॉइड कर देने का? 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो सीधा कंक्लूजन एंड ब्रीफ, ब्रीफ प्रोविजन। 2 मार्क का क्वेश्चन, कंक्लूजन, ब्रीफ प्रोविजन। मैं आपके साथ मई 25 नवंबर 25 के पेपर भी डिस्कस करने वाला हूं, बट एक बार मेरे 11-12 चैप्टर्स हो जाए, थोड़ा सा कंटेंट हो जाए उसके बाद। पर मैं वापस बता रहा हूं, ब्रीफ प्रोविजन, ये ध्यान रखना। एंड अगर ये 4 मार्क, 6 मार्क, 5 मार्क का हो गया, 6 मार्क तो 5, 4 या 5 मार्क का अगर चैप्टर 1 से आता है, तो आपको इसके अंदर वो पहले वाला 4 लाइन डालना है और फैक्ट डालना है। दैट्स इट, दिस इज हाउ द आंसर विल एंड। ओके, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पक्का क्लियर। कैन आई क्लोज ऑन दिस? ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? दोनों ऑलमोस्ट, देखो कमर्शियल कंसिडरेशन छोड़ दो, कमर्शियल कंसिडरेशन छोड़ दो, कमर्शियल कंसिडरेशन छोड़ दो, दिमाग लगाने की बात कर रहा हूं। ये वाले क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? इन फर्स्ट क्वेश्चन द प्रॉब्लम हैज क्रिएटेड बाय whom? Not by employee, by managing partner. In second question the problem is by employee. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैनेजिंग पार्टनर में ही झोल है, टॉप में ही झोल है, तो मतलब खत्म है कहानी। ओके, SQC1 पूरा ब्लंडर है यहाँ पर। ओके, SQC1 ब्लंडर है क्योंकि यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहा है, मेनली एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता। ओके, तो टेक्निकली मोर ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर भी इसमें अंडर डिस्कशन में आ सकता है। मोर ऑफ, आप समझ रहे हो, ऑडिट एंगेजमेंट, तो आपको इसको केस टू केस देखना पड़ेगा। बट आई होप ये क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सिस्टम फर्म पूछा है, इसीलिए आई विल बी मोर रिलेवेंट विद फर्म SQC1। भारत माता की है जेपिंग। तो दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझा? थर्ड क्वेश्चन तो इजी है, ये वाला बहुत 5 सा क्वेश्चन है, ये मैं क्लास में करते वक्त बताता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन में है, मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वैसे ये। CAM introduce a prospective client in social function. ओके, ये गए होंगे पार्टी वार्टी में, शादी का फंक्शन, वैसे अपनी CA की लाइफ में क्या ऐसे फंक्शन होते नहीं है बट करने पड़ते हैं। He assures to visit office of CAM very soon in relation to professional work. During discussion over phone, over a cup of coffee, माँ कसम आप cup of coffee पी जा रहे, it transpires that there was search by enforcement directorate in his premise about a month back, resulting in recovery of huge sum of cash. माँ कसम, खत्म, ब्लंडर। The income tax department has also searched the premises in relation to the bogus capital gain on penny stocks, lamenting poor quality of services provided by his present auditor. He offers appointment. यानी ये बोल रहा है भाई मेरा auditor is not working well. Okay, so I am giving the appointment offer to you as a tax auditor of 5 family owned firms to CAM in lieu of additional fees. यानी आपको फीस बहुत तोड़ दी जाएगी। What are the factors to be evaluated by CAM, okay, if he wants to take up engagement? Okay, the answer is very easy, but damn sure before going on answer conclusion, let me discuss. Okay, आपको नहीं लगता है ये फैक्ट को देख के, ओके, टेक्निकली यहाँ पर भी कमर्शियल कंसिडरेशन ओवरराइड हो सकता है अगर मैनेजिंग पार्टनर इसको हाँ बोलेगा तो? अगर मैनेजिंग पार्टनर इसको हाँ बोलता है, क्या कमर्शियल ओवरराइड होगा? आंसर इज यस, बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन ओनली एट ऑल। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आ गया तो ये सही है, इधर आंसर में लिखा नहीं है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर है। क्लाइंट इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग वाला फैक्टर्स। तो बट बिफोर राइट, ओके, अगेन सेम लॉजिक, इजी आंसर है। ओके, क्या एंगेजमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ओके, नहीं लेना चाहिए ना, नहीं लेना चाहिए, पर फैक्टर्स कितने हैं? तो पहले फैक्टर्स बताओ, एंड क्वेश्चन का आंसर एंगेजमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ओके, ये डिस्कस नहीं है, वो लास्ट कंक्लूजन डालो। क्वेश्चन इज फैक्टर्स टू बी इवैल्यूएटेड फॉर टेकिंग अप एंगेजमेंट। तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? पहले लिखोगे 3 फैक्टर। कौन से 3 फैक्टर? इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, दूसरा पॉइंट CCRT का फुल फॉर्म, ओके, competency, capability, resource, time, and last point will be ethical requirement. These are the 3 factors which need to be considered before continuing and acceptance or continuance of client engagement, buddy. Before acceptance or continuance of client engagement, I hope everybody clear with this point, buddy. Okay, so client का engagement accept करने के लिए, और इसके बाद किसको एक्सप्लेन करना है? किसको एक्सप्लेन करना है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वाले फैक्टर्स कुछ याद है बड़ी आपको? ओके, टोटल अगर आपको याद हो गए, ओके, 7 फैक्टर है। ओके, ऐसे मैंने याद रखने बोलता हूं मैं हमेशा स्टूडेंट को। ओके, देयर विल बी 3 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स एंड 7 फैक्टर, 2 फैक्टर मतलब नेक्स्ट 2 फैक्टर्स। फर्स्ट 2 फैक्टर्स विल बी बेसिकली, अगर आप देखोगे, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस पहला वाला याद रखने के लिए, नेचर ऑफ बिजनेस। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कौन सा रीड कर रहे हैं, चल रहा है आपके बुक में। अगर आप बुक में हो, सबसे पहले जा रहे हैं वी आर ऑन द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, वेयर दिस 3 थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, and after that we are taking this thing 3 things. So if you remember, perfect, nature of business. Second point is reputation, याद आया? Third is attitude. Okay, fourth is money laundering and okay, fees कम करने के लिए बोला,
and next is limitation of scope and change in auditor. These are the 7 points. Okay, and इसमें से मनी लॉन्ड्रिंग में ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये किस में बैठ रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग. Therefore this factor is negative and therefore you should not accept the engagement. Okay, so my question as for SQC1, before accepting new engagement, integrity of client should be considered, including matter that indicate involving in money laundering and criminal activities. यानी आप देखोगे अगर 2 मार्क का क्वेश्चन रहा तो सीधा इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट लिखने का, 2 और बाकी पॉइंट नहीं लिखने का, और इंटीग्रिटी का वो 7 में से एक ही पॉइंट लिखने का. There has been search of ED on the said property to recover the above coupled with the actions of income tax, okay, as capital gain premise, the client might be involved in money laundering. Therefore, the offer should not be accepted. अब my question, अगर ये क्वेश्चन अगर ये 6 मार्क के लिए 5 मार्क के लिए आता है तो ये सब लिखने का. थोड़ा बड़ी क्लियर इंटीग्रिटी के सारे पॉइंट्स, पर ये पहले 3 इंटीग्रिटी के साथ में लिख ही देने का, इंटीग्रिटी, सीसीआरटी एंड एथिकल रिक्वायरमेंट. ओके. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को बताओ. ओके, अपन ने ये बोला था ना, अगर मैं एक थोड़ा सा मिसमैच ये हमेशा होते रहेगा राइट नाउ, बिकॉज व्हेन वी आर इनटू डिस्कशन institute will never ask a question which is already there in database. Remember this point, because institute is having their own GPT, CA-GPT. They will put the institute module in that CA-GPT and tell CA-GPT to draft the question for them. I hope you are getting this point. Institute, why institute is giving MCQ freely to everyone? भाई नवंबर के बाद क्यों इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया चलो MCQ दे देते हैं, काहे के लिए हेडेक करते हैं? अरे यार उनके पास MCQ डेटाबेस आएगा. लेकिन एक नोट करने वाली बात है, मतलब थोड़ा आगे बताऊंगा मैं आपको वो क्या नोट करने वाली बात है. ठीक है, बात खत्म. तो क्वेश्चन ही आया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ अगर ऊपर ये क्वेश्चन आता और ऊपर वाले क्वेश्चन में लेट डिस्कस लाइक दिस, बड़ी एवरीवन, ओके, लेट्स फोकस ऑन लाइक दिस. ऊपर वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर ऐसा आता सुना, ओके, ये बाकी सब चीजें छोड़ दो, खाली ये बताओ उसका दोस्त है मैनेजिंग पार्टनर, ओके, क्या उसने एंगेज, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट. अगर इस क्वेश्चन में वो आता दोस्ती यारी वाला, एंड द क्वेश्चन वुड बी व्हाट आर द फैक्टर्स टू कंसीडर इन एंगेजमेंट, तो आपका आंसर क्या होता? ओके, आंसर क्या होता? फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट एज पर SQC1. तो कितने फैक्टर्स होते थे? 3. इंटीग्रिटी, सीसीआरटी एंड एथिकल रिक्वायरमेंट. समझ में आ रहा है क्या? अगर क्वेश्चन फैक्टर्स पे आता यही होता था, यही 3 होता, और अपन ये बोलते थे कि एथिकल रिक्वायरमेंट है, एथिकल रिक्वायरमेंट along with independence, and therefore the engagement should not be accepted. Okay, but if we put the safeguard, what is the safeguard? That managing partner should not be applied for that engagement. Okay, we would have accept the engagement. This is how the overall crux will work, buddy. Okay, I hope आप समझ रहे हो. भाई अपने को फाइनल लेवल पूरी कहानी खत्म कर दी है भाई इंस्टीट्यूट ने. तो इंस्टीट्यूट ने बहुत सारा ज्ञान दे दिया है अभी अपने को अच्छे से करने का. MP शुड नॉट बी इन्वॉल्व, परफेक्ट. बट ये आपको क्वेश्चन आंसर को मिक्स करने का लॉजिक बैठना चाहिए. थोड़ा बड़ी. फोर्थ क्वेश्चन, GV and Associates are auditor of listed company. Listed company आया, things will different. There are certain restrictions on listed company. EQCR का restriction आता है listed company के. SEBI के resignation के listed company के लिए restrictions आते हैं. Okay, listed company के लिए restrictions बहुत है. EQCR याद है कि नहीं बड़ी? Engagement Quality Control Reviewer. Who can do that EQCR? Involved in fintech sector. The engagement team is stuck up with some issues pertaining to particular Ind-AS applicable to company. यानी engagement team को कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई. Okay, कुछ तो Ind-AS को लगाने के लिए. They have framed the query and have sent to ICI for expert opinion on the matter. Okay, यानी इन्होंने query किसको दी है? ICI को भेज दी है भाई. ICI को भेज दी है. The issue was resolved upon the receipt of expert opinion. Since expert opinion was provided by ICI, engagement team was of view that appointment of EQCR has lost its relevance. Do you agree? Okay, मेरे को बताओ क्या यहाँ पर EQCR कंपलसरी है, ऑप्शनल है? EQCR कंपलसरी है, ऑप्शनल है? कंपलसरी है. तो भाई साहब कहानी खत्म है ना. इवन आप यू किसी भी कंसल्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो टेक्निकली आपको याद रखना है, लिस्टेड कंपनी में EQCR इज कंपलसरी. इवन इफ यू कंसल्टेड विद ICI, इट डजंट अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ. द स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट इज दैट EQCR इज कंपलसरी फॉर द एंगेजमेंट. इट इज मैंडेटरी. तो इवन इफ यू आर गोइंग विद एन ICI recommendations, EQCR is required to be performed. Acha, why you went to ICI? Because there may be some contentious matter. I hope you remember the word contentious matter, confusing matter. Therefore, you consulted. अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ. I hope कुछ recall कर पा रहे हो क्या? Okay, can we consult with EQCR also? Can we consult with EQCR? Okay, answer is yes. You can. मतलब you should avoid. Answer is no. पहले आंसर हमेशा लिखने का no. अवॉइड करना चाहिए. लेकिन अगर कंसल्ट भी कर रहा हो तो उसका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन इंपैक्ट नहीं होना चाहिए.
उसका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। आई होप ये याद है। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मतलब उसके जो एरियाज है ना उसमें कंसर्न, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो उसके उसके एरियाज में आपने उसको कंसर्न नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये वाला आंसर तो क्लोज करें। ओके, EQCR review in listed entity is mandatory requirement. Expert opinion pertains to issue of interpretation, contentious matter के लिए। The appointment of reviewer is separate and mandatory requirement of audit of listed entity. Everybody clear? अच्छा, इसको कैसे कैसे फ्रेमवर्क में डालोगे, इसको कैसे फ्रेमवर्क में डालोगे, एकदम इजी फ्रेमवर्क में। ओके, तो ये अगर अब मेरे को बताओ इस आंसर को बढ़ाना है कैसे करोगे। EQCR मैंडेटरी है, अगर आप देखोगे ना SQCR में कोई ऐसा आपको पूरा पैराग्राफ मिलेगा EQCR के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर मैंडेटरी, हाँ फॉर मैंडेटरी EQCR सिग्निफिकेंट जजमेंट रिव्यू ऑब्जेक्टिव है, ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग EQCR क्या है, कौन करने वाला है, ये कुछ भी नहीं पूछ रहा है। वो बोल रहे हैं EQCR कंपलसरी है या नहीं है, उन्होंने कंसल्टिंग की है। तो आपको दो चीज लिखनी हुई है। हमने कंसल्टिंग की है डिफिकल्ट एंड कंटेशियस मैटर में। ओके, कंसल्टिंग फर्म में भी कर सकते हैं, फर्म में ये जरूरत नहीं है, वापस कंटेशियस मैटर में किया है। हमने ICAI से कंसल्टिंग किया है, बट इसकी वजह से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, जैसे आपने लिखा। तो टेक्निकली आंसर है, बस इस आंसर को अभी बड़ा करने के लिए आप SQC1 का रेफरेंस दे सकते हो, SQC1 का रेफरेंस दे सकते हो। और क्या इनकॉर्पोरेट करो इसके अंदर, क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, फैक्ट को। ओके, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट क्या हो जाएगा बड़ी, फैक्ट। बढ़िया। फिफ्थ वाला आज के लिए इसको लास्ट क्वेश्चन करेंगे, कल वाले थियोरेटिकल क्वेश्चंस और ये कर लेंगे, कल चैप्टर 1 खत्म कर लेंगे। ओके, डे आफ्टर टुमारो आपको कौन सा चैप्टर चाहिए आप बता दो, उसके हिसाब से वो चैप्टर चालू करते हैं आप। ओके, खाली मैं ऐसे 800 को वाली सीरीज जो चैप्टर 8 है अपन उसको लास्ट में रखेंगे, क्योंकि मेरे को उसको अमेंडमेंट रिकॉर्ड करने दो। ओके, वो अमेंडमेंट रिकॉर्ड कर दूं मैं आपके साथ शेयर कर दूं, उसके बाद करेंगे। तो कल ऑडिट रिपोर्ट कर लेंगे, मतलब डे आफ्टर टुमारो से ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर कर लेंगे बड़ी, ठीक है, परफेक्ट। तो डे आफ्टर टुमारो चैप्टर 7 वाला ऑडिट रिपोर्ट विल क्लोज इट आउट। 8 को अपन थोड़ा सा फरवरी मिड के बाद रखेंगे, बिकॉज वो मेरे को पूरे दिन लेक्चर में अटका हुआ, तो जस्ट रिक्वायर्ड टाइम का पॉइंट है। तो अगला चैप्टर 7 कर लेंगे डे आफ्टर टुमारो में। ओके, RST एंड कंपनी टुमारो ऑनवर्ड्स वो 3 बजे चालू हो जाएगा, लिंक शेयर कर देगा, वो मैंने बुक शेयर कर दी है, सब कर दिया है। ओके, तो अपन 3 बजे चालू करके 3 से 4, 4-5 तक अपन क्लोज करते जाएंगे। RST एंड कंपनी अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी। वापस लिस्टेड आते ही ओके, EQCR जैसी और कोई रिक्वायरमेंट होगी, EQCR से भी छोड़ नहीं सकता, ये सब याद रखने का। इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेवी मशीनरी कंपोनेंट्स। The audit report for year 21-22 also included report on matter listed in Caro 2020. Okay. While reporting under clause 7A of the said order relating to regularity of undisputed statutory dues by the company, the auditor have commented that company is generally regular, and is regularity of undisputed fees. ओके, यानी क्वेश्चन इज अबाउट अनरेगुलरिटी ऑफ अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब इसके लिए आपने कारो अगर देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्लॉज है कारो में, ओके, जो कि क्लॉज 7 आता है, विच इज फोकसिंग ऑन स्टैट्यूटरी ड्यूज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। और वहां पर बोला जाता है जो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो तो भाई रेगुलर होने चाहिए। ओके, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो क्या होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए। क्या वो रेगुलर है कि नहीं है उसके ऊपर कमेंट करिए। और यहाँ पर ऑडिटर ने क्या कमेंट किया, ओके, ऑडिटर ने कमेंट क्या किया, ओके, जनरली रेगुलर। क्या ये सही शब्द का प्रयोग किया हुआ है, आंसर इज नॉट एट ऑल बड़ी। ओके, डिपॉजिटिंग स्ट्रेटजी जनरली रेगुलर क्या होता है, जनरली मतलब यार 10 बार किया होगा, 5-6 बार, इसका मतलब इरेगुलर है वो। ओके, स्ट्रेटजी ड्यू इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इज दिस अबाउ रिपोर्टिंग क्वालिटेटिव एंड इन लाइन विद रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 220। अब इसको शांति से देखते हैं, दो एलिमेंट देखते हैं मालिक। ओके, दो एलिमेंट देखते हैं। पहला एलिमेंट, क्या ये क्वालिटेटिव रिपोर्टिंग है क्या, नहीं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बिकॉज वी आर राइटिंग जनरली रेगुलर। इट इज नेवर ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरली रेगुलर। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा। एंड ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव है, जो इंगेजमेंट पार्टनर करना चाहता है, क्या इंगेजमेंट पार्टनर शुड कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स? Will he comply only with SA 220, SA 200 and 300 series? No, he will comply with standards. He will comply with professional and regulatory requirement also. He will comply with legal requirement also. तो मेरे को बताओ, उसको किसने बोला कि कारों पे रिपोर्ट करना पड़ेगा? उसको किसने बोला कारों पे रिपोर्ट करना पड़ेगा? कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट इज मेकिंग इन लाइन दैट यू नीड टू रिपोर्ट ऑन कारो। तो भाई साहब, ये क्वालिटेटिव रिपोर्टिंग नहीं है, यानी ये क्वालिटी कंट्रोल मीट नहीं हो रहा है। देखो, एक चीज ध्यान रखना, बड़ी 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 ओके, याद रखना, अगर ये लाइन काट दूं मैं, ये लास्ट वाली लाइन काट दूं और मैं खाली कारों पे लेके जाऊं तो आंसर चेंज हो जाएगा। ये अपना नेक्स्ट चैप्टर का होएगा, चैप्टर 7 का कारों का हो जाएगा।
ये कारो का ना होके चैप्टर 1 में क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन आया एसए 220 के रेफरेंस से। तो अब एसए 220 में लेहम पे जाइए, लेहम होगा, एसए 220 में भी लेहम होगा। लेहम में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही ये आंसर है बड़ी। Okay, he should comply with professional standard. He should comply with legal regularity. He should issue the report. Okay, appropriate report. याद है क्या? Appropriate report है कि? क्या appropriate report है क्या रे? नहीं ना? And most important, he should raise the concern without fear. So this is not an actually meeting that requirement. तो ये leadership responsibility के logic से ये मैच नहीं है. तो इसका मतलब ये quality control का compliance कर नहीं रहा है. तो such type of reporting is not qualitative. ओके, इट इज क्वालिटेटिव इस कंटेक्स्ट में, प्लीज हाँ, और एक चीज समझ लेना बड़ी, ये क्वालिटेटिव इज नॉट इन कंटेक्स्ट विद अमाउंट एंड फिगर्स, हाँ, बिकॉज चैप्टर 7 चालू करोगे आप, ऑडिट रिपोर्ट चालू करोगे तो उसमें कुछ अमाउंट फिगर की वजह से आपको, देखो अमाउंट के ऊपर बात करें तो कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव नहीं होता, क्वांटिटेटिव होता है, और अगर मतलब अमाउंट के अलावा कुछ बात करें तो क्वालिटेटिव होता है। एग्जांपल, वी ऑलवेज गिव सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स टू द टीसीडब्ल्यूजी, दोज हु आर चार्ज विद गवर्नेंस। आई होप यू रिमेंबर दिस वन। ओके, 260 में भी अपन देखते हैं। So don't mix that qualitative with this qualitative word. This qualitative is basically compliance with quality control. Compliance with quality control. I hope you are getting the point. See, right now you are in chapter 1, इसलिए तुमको ये बैठ रहा है, लेकिन वो पेपर में जब आएगा तो मेरे को कैसे समझेगा? हाँ, क्वेश्चन 1 यही चैप्टर से आएगा, ऐसा नहीं है बड़ी। आप दोनों टाइम में वही आ गया तो किस्मत रही, तो नेक्स्ट टाइम पे भी अपने को वैसे ही आ जाए तो लक हमारा, लेकिन नहीं भी आया तो भी टेक्निकली यू नीड टू आंसर इट आउट। इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद एसए 220, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। आई होप ये तो क्लियर ही है। अच्छा, ये देखो, ये आंसर है, ऑब्जेक्टिव है, तो भाई ये रिपोर्टिंग कारों की बराबर नहीं है, हेंस ऑडिट डू नॉट कंप्लाई विद दिस पॉइंट। अभी बस इसको आंसर को बढ़ाना रहा तो क्या करने का, फैक्ट को डाल देने का, और वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव के साथ में। ओके, ऑब्जेक्टिव उसका उसका रेफरेंस दे सकते हो, पहले 2 पॉइंट का, 2-3 पॉइंट का, समझ रहा है, 2 पॉइंट जो है ना लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भाई लीडर ने वो क्वालिटी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर निभाई नहीं है एडिशनली, बट क्योंकि यहाँ पर तो इट इज फोकसिंग इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट। आई होप जेपिंग बड़ी। ओके, मेरे को तो इसमें उसने गड़बड़ क्या थी, इसमें क्या आंसर करना चाहिए था उसने, रेगुलर करना चाहिए था, जनरली रेगुलर करना चाहिए था, रेगुलर करना चाहिए था इसमें, रेगुलर, रेगुलर या इरेगुलर, ये 2 शब्द यूज करने चाहिए थे। ओके सर, इसमें लीडरशिप का क्या काम, मैं बोल रहा हूँ टेक्निकली जब मार्क्स बढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर मैं क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स एंड इनलाइन है ना, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं ऑडिटर्स हैव कमेंटेड, तो उन्होंने अपनी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की है, तो इट इज ओनली अबाउट दैट इंक्रीजिंग द स्पेस, अरे बड़ी इंक्रीजिंग द स्कोप। अभी एग्जांपल ऐसा, अभी तू बोलेगा क्या काम है इस कंटेक्स्ट में, अगर मैं देखो एक क्वेश्चन देखा, मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहेगा, ये अपने को देखना होगा, पूछा नहीं वो लिखना नहीं है अपने को, ये क्लियर है, लेकिन कुछ कुछ चीजें है अभी, जैसे एग्जांपल, ओके, अगर एग्जांपल ये थर्ड में देखे, ओके, यहाँ पर खाली फैक्टर्स पूछा होगा, लेकिन अपन ने बोला एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करने का, समझ रहा है, थोड़ा सा एडिशनल वैल्यू एडिशन वाला कॉन्सेप्ट। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है अपना एसए 220 का, वो तो लिख ही रहा हूं, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, लीडरशिप वाला, समझ रहा है, वो उस कंटेक्स्ट में लाइन डालने में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको वो मैच होता है कि लीडरशिप की जिम्मेदारी थी ये कंप्लाई करने की, तो एसए 220 का तो ऑब्जेक्टिव कंप्लाई नहीं हुआ, साथ में ऑडिटर ने भी उसकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लाई नहीं की, नॉट एलोबरेटेड नहीं बोला मैंने, इसलिए बोला उसके 4 पॉइंट थोड़ा डालने अपने को, उसके चारों नहीं डालने बोले मैंने, मैंने सिर्फ वो उसी के जो इसका लाइन है ना, इसी लाइन पे आंसर रखने का। ओके, एंड मैं वापस बोल रहा हूँ, देखो ऐसे हो सकता है सब्जेक्टिव, अगर आपको लग रहा है उस टाइम पे मेरे को ये क्लिक नहीं हुआ, डजंट मैटर, जो आपको क्लिक हो रहा है ना उस फ्लो में जाओ, लेकिन आप क्लिक करना चालू करो, आप इंटीग्रेट करना चालू करो, आप प्रोविजन और फैक्ट ये मिक्स करना चालू करो, आप सारे एलिमेंट्स कवर करने की कोशिश करो, फिर जो पूछा है उसके आंसर देने की कोशिश करो, थोड़ा सा एलोबरेट करना, कम करना, ये थोड़ा सा अपने को एनालाइज करना पड़ेगा, इट विल डिफर फ्रॉम सब्जेक्टिव जजमेंट है, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बड़ी, थोड़ा सा चेंज होते जाएगा। तो टेक्निकली व्हाट आई वांट टू कंक्लूड इज बेसिकली, सर इसमें एसक्यूसी 1 का भी रेफरेंस देते और कारो 2020 तो चलता था क्या, एसक्यूसी 1 का मैं बता रहा हूं क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि द क्वेश्चन इज ऑन नॉट ऑन फर्म व्हाइल रिपोर्टिंग ऑडिटर को वर्ड यूज किया है, इसलिए आई एम मोर प्रिसाइज। आई नो लीडरशिप मैंने डिस्कस किया है, लेकिन एसक्यूसी 1 है ऑडिटर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, आई नो ऑडिटर फर्म है, लेकिन ऑडिटर्स हैव कमेंटेड, तो मोर प्रिसाइजली कोई ऑडिटर होगा तो उसने फर्म ने कमेंट तो ना किया होगा, एंगेजमेंट पार्टनर ने कमेंट किया होगा, इसकी वजह से ये पॉइंट अपन देते हैं। तो इसमें एसक्यूसी 1 दे दिया तो थोड़ा सा अपन टेक्निकली बहुत ही डाइवर्ट हो जाएंगे। इवन लीडरशिप जो तुमने बताया कि मैं बोला ना, वो मैंने सिर्फ उसको एलोबरेट करने के लिए बोला, वो भी 2 लाइन, बाकी वो भी डाइवर्जन ही है, लेकिन टेक्निकली दैट्स हाउ कॉन्सेप्ट वर्क्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, कल ये बड़ी कल क्लियर है। कल अपन इसके थियरी क्वेश्चंस को क्लोज करेंगे। थियरी क्वेश्चन में पहले 3-4 क्वेश्चन जो अपने पुराने हुए ही है, लेकिन उसके बाद 5-6 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, तोड़ क्वेश्चन है,
कल अपन टाइम लेंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन बच जाए, पेंडिंग रह जाए, वो डे आफ्टर टुमारो अपन कंटिन्यू करेंगे एंड विल कंटिन्यू विद चैप्टर 8 इन द नेक्स्ट डे। तो आप दोनों चैप्टर रिवाइज करके रख दीजिए, सॉफ्ट कॉपी शेयर की हुई है। एमसीक्यू फरवरी एंड तक वेट करिए, उसका कंपाइलेशन चल रहा है। फरवरी मिड तक जब मेरी बैचेस चालू रहेगी, फास्ट ट्रैक बैच चालू होगी और मेरी फेस टू फेस बैच खत्म हो जाएगी, उसके बाद विल स्पेंड मोर टाइम ऑन नंबर ऑफ आवर्स। बेसिकली ये ध्यान रखना, for cracking MCQ, ICI, SM and MCQ and conceptual clarity is enough to crack MCQ or anything. देखो निरुति, anything else is also required. Okay, देखो conceptual clarity will help you to write the answer, but practice will make you more perfect. What is the logic behind why we are taking these sessions? Okay, ये सेशन क्यों है, ये तो आप रीड करके खत्म भी कर सकते हो, बट ये सेशन से हम ये समझ रहे हैं कि आंसर लिखने का तरीका, इट इज मेकिंग ए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट, दैट्स इट। यू मे बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, यू मे बी तोड़ क्लियर विद मेनी थिंग्स, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, बट इट्स ओनली बाय प्रैक्टिस यू विल बी अवॉइडिंग द एरर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यू मे, मतलब ऐसा हो सकता है आप उधर क्वेश्चन में कुछ और इंटरप्रेट कर लो, घर पे आके मालूम पड़े अरे माँ कसम कॉन्सेप्चुअली क्लियर थे इसलिए क्लिक हो गया, लेकिन उधर क्लिक नहीं हुआ ना। उधर क्लिक करने के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। तो आपका पहला ये बुक होगा, दूसरा कंपाइलेशंस, अपने एमटीपी आरटीपी दिखने चाहिए। ओके, दो तीन अटेम्प्ट के पूरे कंपाइलेशन में करवा रहा हूँ। ओके, जो सारे के सारे ये पॉइंट है, तो वॉल्यूम 3 कंपाइलेशन का रेडी हो रहा है प्रोसेस में। एंड एमसीक्यू के लिए ओके जीपीटी, वी आर यूजिंग द जीपीटी, सेम लॉजिक अपन करेंगे, पर मैं एमसीक्यू क्या होगा मानो, मैं पूरा सिलेबस जिस दिन रिवाइज कर लेंगे ना, उसके बाद फिर फरवरी एंड और मार्च फर्स्ट वीक पूरा एमसीक्यू कर लेंगे। एक कॉम्बिनेशन एमसीक्यू करने में मजा आएगा ना, मतलब एमसीक्यू कुछ भी आया तो अपन आंसर सॉल्वेबल होना चाहिए, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मजा नहीं आएगा, इसीलिए तो चैप्टर वाइज अपन थियरी क्लोज कर रहे हैं, थियरी का रेडी भी हो जाएगा और आपका पढ़ के भी हो जाएगा। तो आप टारगेट बस यही पॉइंट है कि मैं 3 से 4, बिकॉज मॉर्निंग मतलब 8 से मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं और रात के शाम को 8 बजे तक 7:30 तक मेरे लेक्चर्स है, तो थोड़ा सा टाइम आई एम हैविंग रेस्ट्रिक्शन, अभी उससे पहले भी नहीं ले सकता, सुबह में रात को भी, तो थोड़ा सा आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है बड़ी, तो सी यू मालिक, आज तला विस्ता, टेक केयर, कल मिलते हैं 3 बजे।